मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लोकसभा। हमने इसके पहले क्लास में डिस्कस किया था फॉर्मेशंस एंड फंक्शंस ऑफ फॉर्मेशंस एंड हाउ द फंक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो मेनली जो था वो फॉर्मेशंस ही था। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, कि उसकी पावर्स कैसी है, कितने राइट्स है और ड्यूटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले जुडिशियल पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस द इंडियन पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉज ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट, concurrent list, residual list, and in some cases also on the subject of the state list. So what is the list over here? Union list, concurrent list, residual list, and the state list. Now central government when forms law. So central government and state government, we have different levels of government. So the central governments on the matter, on the subject which makes the law. So central government will make the law for the entire country, because it is controlling the country, not the states. So the central government, whenever he will make the law on the subject related with for the country, entire country, it is called as union list. Concurrent list means the state government plus the central government, in which both the issues are connected. For example, education, take the example of education. Central government and state government both are having the same education departments. So on that matter, when the state and central government both work together, that is will call as concurrent list. And the residual list means when the constitution has been formed, on that time there are many matters or subjects which has not been evolved. For example, IT. On that time, no one knows about the IT, what is going to be a new era. So, after that, when a new subject arises, whatever the new will arise in the future also, that is been put in the name as रेसिडुअल लिस्ट। वो सभी चीज़ों को रेसिडुअल लिस्ट के अंदर रखा गया है उसके नाम से। तो who is going to have the power to make the law? So for this central government, because central is the highest level of government, so for that central government will make law on the residual list also. Sometimes in the state matters also, the central governments make some changes also. So that is also very rare cases. So this is how the judicial power of the Lok Sabha. In context to simple non-financial bills and constitutional amendment bill, the constitution provides that these type of bills can be presented in Lok Sabha or the Rajya Sabha, any of these two houses, and only after being passed from both the houses, then they will send to the president for his signature. Means whether it is financial bill or non-financial, that was not money bill. Okay, तो जो ऑर्डिनरी बिल होती है वो वाली उसे नॉन फाइनेंशियल बिल कहा जाता है, बिकॉज पार्लियामेंट में जो मैटर होता है डिस्कस करने का होता है, एक तो मनी से रिलेटेड होता है, उसे मनी मैटर कहा जाता है, या फिर मनी मैटर से रूल्स बना तो मनी लॉ हो गया। बिल उसके जब तक वो नहीं बनता तब तक बिल्स के नाम से वो चलती है। फिर मनी बिल के अलावा उसे ऑर्डिनरी बिल्स के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पे सिंपल नॉन फाइनेंशियल बिल मीन्स ऑर्डिनरी बिल। तो यहाँ पे अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट है, चेंजेस करना है, उसके अंदर मॉडिफाई करना है, ये तभी होगा जब ये लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में पास हो जाएगी, और पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी सिग्नेचर के लिए, तब जाके वो बिल जो है पास होती है, अमेंडमेंट हो या फिर कोई और बिल। फाइनेंशियल पावर क्या है यहाँ पे लोकसभा के पास? फाइनेंशियल पावर्स कहा गया
ये राज्यसभा एंड द लोकसभा में सबसे जैसे पहले कहा था कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल मैटर इज ऑलवेज डील विद द लोकसभा. मनी मैटर जो है, मनी बिल जो भी है, वो किसके पास होती है? वो लोकसभा के पास होती है. तो इसीलिए लोकसभा, तो ये ऑब्वियसली जिसके पास मनी मैटर है दैट इज मोर पावरफुल. तो इसी तरह से लोकसभा इज मोर पावरफुल इन द फाइनेंशियल पावर्स. देखा जाए तो उनके पास ये सबसे ज़्यादा है. राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा इट्स ओनली दैट व्हेन द बिल इज बीन मूव्ड फ्रॉम लोकसभा टू द राज्यसभा. क्योंकि ये प्रोसेस है. ऑर्डिनरी बिल कैन बी स्टार्ट either in Rajya Sabha then move to Lok Sabha, but money bill will always move from Lok Sabha to the Rajya Sabha, क्योंकि लोक सभा ही मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं. तो मनी बिल जो है राज्यसभा में जब जाएंगी तो राज्यसभा के पास पावर इतना ही है दैट ही कैन रिटेन फॉर 14 days. वो अपने पास 14 days तक ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते उसे, क्योंकि उसके बाद उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा वॉट एवर द एडवाइस दे हैव बीन गिवन टू द लोकसभा. इट डजंट मैटर दैट लोकसभा विल एक्सेप्ट दैट. वो एक्सेप्ट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते. दैट डिपेंड ऑन इट्स किसको करना है या नहीं करना है. तो अल्टीमेटली राज्यसभा के पास क्या है कि दैट ही विल एडवाइज, बट द एडवाइस मे बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड. दैट डिपेंड ऑन द लोकसभा एंड दे कैन डिले द बिल फॉर 14 days. तो ये 14 days में ही बस इतना ही इनके पास पावर है कि वो रोक सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है राज्यसभा के पास. नाउ थर्ड इज पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव. हाउ इट इज़ बीन कंट्रोल्ड. तो लोकसभा को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्लेटफॉर्म दिया गया है. देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव जो है, तो मेन एग्जीक्यूटिव कौन है? जो इज गोइंग टू डू द वर्क फॉर द कंट्री. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट दैट इज इन द लोकसभा. क्योंकि मेजोरिटी पार्टी जो जीतती है, जो भी इलेक्शन जीतती है मेजोरिटी पार्टी, उसका लीडर जो होता है सबसे पहले वो पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर. और पीएम अकेले काम नहीं करते, ही नीड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ही मिलकर वो काम करते हैं. तो इसीलिए अब ये जो है कि काम कौन करेगा? तो वो इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये सारा काम जो है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग मिनिस्ट्री संभालते हैं. एजुकेशन मिनिस्टर्स है, हेल्थ मिनिस्टर्स है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स है, रेलवे मिनिस्टर्स है. तो दे आर द कंट्रोलिंग ऑल दिस डिपार्टमेंट्स. एंड इफ, तो यहाँ पे देखा गया इफ द लोकसभा, तो लोकसभा में देयर इज द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द ऑपोजिशन पार्टी. सो द एग्जीक्यूटिव इज बिन कंट्रोल्ड बाय द लोकसभा, क्योंकि वहाँ पे लोकसभा में है ऑपोजिशन पार्टी जो उसको कंट्रोल करती है. वो देखती है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे रूलिंग पार्टीज. तो इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो तब तक रिमेन करेंगे, इंजॉय करेंगे पावर, जब तक उनको सपोर्ट मिलेगा लोकसभा में. तो इसीलिए यहाँ पे लोकसभा जो है टोटल कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर. फोर्थ, पावर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई रूल्स के अंदर चेंजेस करना है. अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन वी ऐड और चेंजेस द प्रीवियस लॉ, जो रूल्स है उसको कुछ हम रिमूव करके न्यू ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसे अमेंडमेंट कहा जाता है, ठीक है. तो लोकसभा के पास ही पावर्स है टू मेक द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द राज्यसभा. उनसे एडवाइस लेके वो अमेंडमेंट करेंगे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग. 368 आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. द वर्क ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय द पार्लियामेंट अलोन. तो स्टेट में भी वो अपने आप नहीं करेंगे, पार्लियामेंट जब तक उनको ये सारा काम जो है पार्लियामेंट में ही होती है. Now next is functions in the form of election commissions. तो यहाँ पर लोकसभा
इज ऑल्सो एक्ट एज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो किस किस्म से वो इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं? तो देयर इज एन अगेन अ सेक्शन इन द आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में 54 के अकॉर्डिंग कि लोकसभा जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव दैट वाज, तो ये लोकसभा हो गया सेंट्रल के लिए, और स्टेट के अंदर जो लोअर हाउस है, तो ये भी लोअर हाउस है, ये भी लोअर हाउस है। तो ये स्टेट में इसको क्या कहा जाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। अगर इसको हम दूसरे नाम से बोलेंगे तो इसे कहा जाता है विधान सभा। और स्टेट सेंट्रल में लोकसभा या फिर लोअर हाउस। तो ठीक है, तो ये दोनों मिलके दे आर बीन जॉइंटली दीज मेंबर। तो ये हो गया, इसे एमपी कहेंगे हम, और इसे क्या? एमएलए कहेंगे। तो एमपी एंड एमएलए जॉइंटली दे कैन जॉइंटली इलेक्ट प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के चुनाव में दे कैन पुट दियर नेम फॉरवर्ड, और इसके बीच में ही इलेक्शंस होती है, किसकी? प्रेसिडेंट की। तो इसीलिए इसे कहा गया दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशंस। ठीक है, फिर मूव करते हैं हम लोग फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा। द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा, पहला वापस सबसे पहला जो है वह जुडिशियल पावर। अलॉन्ग विथ लोकसभा, राज्यसभा ऑल्सो परफॉर्म वर्क एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशंस ऑफ लॉ। तो देखा गया जुडिशियल पावर जो है लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा जिस तरह से करते हैं राज्यसभा वैसे ही मोस्टली सारा काम वैसे ही करते, रूल्स यहाँ पर भी सेम होगा। जो राज्यसभा में हुआ वो लोकसभा जाएंगे, लोकसभा से वापस राज्यसभा में जाएंगे। ओनली वन इज दैट कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। मनी बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होती है, वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा आइदर और इन लोकसभा। ठीक है, फिर हम लोग मूव करते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड वाला है मेक पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पे भी पावर अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर राज्यसभा इंजॉयज इक्वल पावर एज द लोकसभा, क्योंकि दोनों हाउस जब तक परमिशन नहीं देंगे, जब तक उनकी वोटिंग नहीं होगी, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, तो अमेंडमेंट कोई भी चीज़ अमेंडमेंट नहीं होती है। तो ये इसका मतलब ये है कि जितना इम्पोर्टेंट लोकसभा है अमेंडमेंट के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट राज्यसभा भी है। बिकॉज वैन लोकसभा गिव द परमिशन और दैट वाज द वोटिंग, तो राज्यसभा के अंदर भी वोटिंग होगी, वहाँ पर भी दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, in the voting. So in case of discrepancies between both the houses regarding resolutions of constitution's amendment, the constitution's amendment resolutions will not be passed. तो अगर किसी एक के बीच में दोनों हाउसेस में इन्होंने सही से रेजोल्यूशन पास नहीं किया, अपनी ही मनमानी करी, ठीक है, तो इसी तरह से ये रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में पास नहीं हो पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राज्यसभा एंड द लोकसभा दोनों ही इक्वल तरीके से इसे पास करवाएंगे। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर। ना फाइनेंशियल पावर्स में अगर हम जाते हैं तो जिस तरह से राज्यसभा कहा गया हैज सर्टेन फाइनेंशियल पावर, ऑल्दो इन दिस कंटेंस द पोजीशन ऑफ द राज्यसभा इज वीकर एज कम्पेयर टू द लोकसभा। लेकिन जितना स्ट्रांग है लोकसभा उतना ही स्ट्रांग राज्यसभा नहीं है, वो थोड़ी वीकर है कंपेयर टू द लोकसभा के। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, क्योंकि मनी बिल जो है वो सबसे पहले और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है। फिर लोकसभा में जो प्रोसेस होती है, जब वो लोकसभा में एक्सेप्ट हो जाती है, अप्रूव्ड हो जाती है, देन इट विल सेंड टू द Rajya Sabha. Then again the process will moved in the Rajya Sabha as it was moved in the Lok Sabha. There will be a first reading, second reading and the third reading. So इसी तरह से इनके साथ भी वही process होगा and decided who will have to decide upon the bill within the 14 days. तो the Rajya Sabha they can put for 14 days. वो अपने पास इस मनी बिल को 14 डेज तक ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। नाउ राज्यसभा विल कैन गिव एडवाइस टू द लोकसभा। तो राज्यसभा अब क्या वो एडवाइस दे सकते हैं लोकसभा को रिगार्डिंग अ मनी बिल।
बट इट डिपेंड ऑन द लोकसभा कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या वो उसे रिजेक्ट करते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव पावर्स में अगर हम आते हैं तो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लोकसभा. जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा में. द हाउस ऑफ पीपल in the parliament. In the same way, in India, the councils of ministers collectively responsible toward the Lok Sabha and not toward the Rajya Sabha. तो उसी तरह से जिस तरह से लोकसभा में रिस्पॉन्स, क्योंकि लोकसभा में ही ऑपोजिशन पार्टी बैठी है जहाँ पे लोगों ने उन्हें वोट दिया था एंड दे डोंट हैव द मेजोरिटी, बट रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी है, बट स्टिल द ऑपोजिशन हैज़ द पावर टू क्वेश्चन देम. तो इसीलिए राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है. तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो लोकसभा के अंदर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो आंसरेबल है टुवर्ड द लोकसभा, नॉट टुवर्ड द राज्यसभा. मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चंस फॉर द मिनिस्टर्स एंड कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज देम. तो राज्यसभा करती क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? मेंबर्स जो होंगे राज्यसभा के, दे विल पुट क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन पूछ सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने, काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. ठीक है. बट दे डू नॉट रिमूव, उनके पास पावर नहीं है कि वो रिमूव कर दे मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ मोशंस. तो ये जो है ये सिर्फ लोकसभा में होता है. एक मोशन होती है जहाँ पे वो पास करते हैं, नो कॉन्फिडेंस, नॉन कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन लिखा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो इसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है. अगर ये लोकसभा में यहाँ पास हो जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इट मीन्स द मिनिस्ट्री, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट्स लीडर प्राइम मिनिस्टर्स, इन्हें रिजाइन करनी पड़ती है. नेक्स्ट आता है मिसलिनियस पावर्स. मिसलिनियस पावर्स में अगर हम मूव करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दैट राज्यसभा हैज सेवरल अदर पावर्स विच इज यूज्ड जॉइंटली अलॉन्ग विद द लोकसभा के साथ ही यूज करते हैं. जैसे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो राज्यसभा की जो चुनाव होती है उसके अंदर साथ में राज्यसभा चुनाव में तो लोकसभा भी होती है. किसकी इलेक्शन में? प्रेसिडेंट की इलेक्शन में. फिर मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली किसे इलेक्ट करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं. मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली इम्पिच करता है. किसी को रिमूव करना हो तो उसे पार्लियामेंट में इम्पिच कहा जाता है. तो ये रिमूविंग प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट. तो इम्पीच होती है, प्रेसिडेंट की होती है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको इम्पीच करके वो रिमूव कर सकते हैं. तो ये अकेले राज्यसभा नहीं करती, बोथ द हाउस, दैट वाज लोकसभा एंड द राज्यसभा. इम्पीचमेंट इजीली नहीं इतना होता है. इम्पीचमेंट के लिए मोशंस पास करना पड़ता है सबसे पहले. जब ये मोशंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज एक्सेप्ट दिस मोशंस, जब ये मोशंस होती है तो दोनों हाउस में अगर परमिशन मिल जाता है, मोशन पास हो जाता है, तब जाके नेक्स्ट प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की. फिर राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली पासेस मोशंस थ्रू मेजोरिटी एंड रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस ऑल्सो. तो यहाँ पर दोनों वापस राज्यसभा एंड लोकसभा मूव कर सकते हैं रिमूव्ड वाइस प्रेसिडेंट को भी. द मोशन ऑफ रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट इज फर्स्टली पास्ड इन द राज्यसभा बिकॉज राज्यसभा ही वॉज सिटिंग इन द राज्यसभा. तो इसलिए सबसे पहले राज्यसभा में होगा, देन इट विल मूव टू द लोकसभा. बस इतना ही चेंजेस है. इफ इमरजेंसी हैज टू बी इमर्ज्ड employed for more than 1 month, then this type of motion should be passed separately by both the respective house, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, through special majority. तो अगर कोई इमरजेंसी जो है 1 मंथ से ज़्यादा अपने यहाँ पे करनी है, इम्प्लीमेंट करवानी है, इट शुड बी एक्सटेंडेड मोर देन 1 month, देन बोथ द हाउसेज सेपरेटली इस मोशंस को पास करवाएंगे, वो भी स्पेशल मेजोरिटीज के अकॉर्डिंग. That was must be 2/3 majority. The special privileges क्या है? Finally, the Rajya Sabha has such power which has not been provided to the Lok Sabha, which are used by the Rajya Sabha only. तो वो क्या है? These two type of powers are associated with the federal structure of the country. Federal structure of the country means the state government and the central government. तब जाके जब powers sharing होती है तो उसको कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर. तो राज्यसभा इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, क्योंकि राज्यसभा जो है मेनली
काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। सो ये स्टेट के अंदर जब ये पावर एंजॉय करता है, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 249 में, थ्रू अ मेजोरिटी 2/3 of its member present and participating in the elections, the Rajya Sabha can declare a subject present in the state list to be a subject of national importance. तो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी जो है 2/3 मेजोरिटी वो प्रूव कर देती है कि जो सब्जेक्ट जिस मैटर पे स्टेट जो है रूल्स बना रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उस सब्जेक्ट को हम लोग नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे तो वो इजीली कर सकते हैं। और राज्यसभा के पास ये पावर है, ये पास आउट इजीली कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड 2/3 मेजोरिटी उनको वोट देती है, तो ये इजीली स्टेट लिस्ट जो है मूव करके नेशनल दैट वाज यूनियन लिस्ट में इम्पोर्टेंस के रूप में वो यूज़ किया जाएगा। ये पहला था। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली द राज्यसभा हैज द पावर to provide right to establish new all India services to the central government by passing a motions 2/3 of its majority। तो वापस से राज्यसभा के पास पावर्स है, जो भी राइट्स न्यू रूल्स इस्टेब्लिश की गई है किसके बीच में, ऑल इंडिया सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, इससे रिलेटेड जो भी है ये राज्यसभा के पास पावर्स है। तो वो उसके वापस ये पास कब होगी, जब राज्यसभा पास करेगी 2/3 ऑफ इस मेजोरिटी, तब ये मोशन पास आउट इजीली हो जाएगा फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ऑल इंडिया सर्विसेज पूरे इंडिया के लिए होती है, तो इसमें स्टेट भी आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो है हमारा ये नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है प्रेसिडेंट। तो हम लोग प्रेसिडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।